Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 9th Civics chapter 1st. What is democracy? Why democracy? अर्थात लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों? Now overview. What is democracy? What are its features? This chapter builds on a simple definition of democracy. Step by step, we work out the meaning of the terms involved in this definition. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. लोकतंत्र क्या है? इसकी विशेषताएं क्या हैं? हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। इस अध्याय को पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकेंगे। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। Democracy is the most prevalent form of government in the world today and it is expanding to more countries. But why it is so? What makes it better than other form of government? That is the second big question that we take up in this chapter. समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीजें इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती हैं? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। Now, what is democracy? Democracy अर्थात लोकतंत्र क्या है? You have already read about different forms of government. आपने सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ा है। On the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few examples, write down some common features of democratic governments and non-democratic governments. लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें। Why define democracy? लोकतंत्र को परिभाषित करने की जरूरत क्यों है? Before we proceed further, let's first take note of an objection by Mary. आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. Her teacher Matilda Lingdo respond to her question as other classmates join the discussion. लोकतंत्र जो मैरी है वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती
और कुछ बुनियादी सवाल अपनी टीचर मैटिल्डा लिंगदो से पूछना चाहती है। टीचर ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो क्लास की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में, इस डिस्कशन में भाग लेने लगी। नाउ मैरी, मैडम, I don't like this idea. First, we spend time discussing democracy and then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, should not we have approached it the other way round? Shouldn't the meaning have come first and then the example? मैरी कहती है, मैम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई। अब क्या ऐसा ठीक नहीं हो सकता? लिंगदो मैडम, I can see your point, but that is not how we reason in everyday life. We use words like pen, rain, or love. Do we wait to have a definition of these words before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of these words? It is only by using a word that we understand its meaning. लिंगदो मैडम कहती हैं, तुम्हारी बातों में मैरी दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं करते? क्या हम पेन, बारिश, प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही कई बार हम उनका अर्थ जान पाते हैं। मैरी, but then why do we need definition at all? मैरी कहती है, फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? लिंगदो मैडम, we need a definition only when we come across a difficulty in the use of a word. We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from, say, drizzle or cloudburst. The same it is true for democracy. We need a clear definition only because people use it for different purpose, because very different kinds of governments call themselves democracy. लिंगदो मैडम कहती हैं, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हम किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी महसूस करते हैं। हमें बारिश की परिभाषा करने की जरूरत तभी होती है जब हम बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क नहीं कर पाते। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक कहती हैं। Ribyang, but why do we need to work on a definition? The other day, you quoted Abraham Lincoln to us. Democracy is government of the people, by the people, and for the people. We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Why do we need to change it?
रिबियांग ने पूछा। लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन व्यवस्था है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। फिर हमें इसमें बदलाव करने की जरूरत ही क्या है? लिंगदो मैडम, I am not saying we need to change it. I too find this definition very beautiful, but we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. लिंगदो मैडम ने कहा, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही परिभाषा सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी व्यक्ति ने या किसी बहुत फेमस व्यक्ति ने उसके लिए बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। योलांदा, मैम, कैन आई सजेस्ट समथिंग? We don't need to look for any definition. I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word demokratia. In Greek, demos means people and kratia means rule. So democracy is ruled by the people. This is the correct meaning. Where is the need to debate? योलांदा कहती है, मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी वर्ड डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, और यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की जरूरत ही क्या है? नाउ लिंगदो मैडम, that is also a very helpful way of thinking about this matter. I would just say that this does not always work. A word doesn't remain tied to its origin. Just think of computers. Originally, they were used for computing, that is to say calculating very difficult mathematical sums. These were very powerful calculators. But nowadays, very few people use computer for computing sums. They use it for writing, for designing, for listening to music, and for watching films. Words remain the same, but their meaning can change with time. In that case, it is not very useful to look at the origin of a word. लिंगदो मैडम कहती हैं, मैं इस सवाल पर विचार करने का यह भी एक बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से ही उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा हुआ नहीं रह सकता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ भी बदलता रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत ही
शक्तिशाली कैलकुलेटर था, पर अब शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने, फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं रहता। मैरी, मैम, so basically what you are saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves. We have to think about its meaning and involve a definition. मैरी कहती है, मैडम, आपके कहने का अर्थ यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा करनी होगी। लिंगो मैडम, you got me right. Let's get on with it now. लिंगो मैडम कहती हैं, एकदम सही। इसीलिए आओ अब हम यह काम करें। A simple definition. Let's get back to our discussion on similarities and differences among governments that are called democracies. One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. We could thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसीलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। यह एक उपयोगी शुरुआत है। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार were not elected by the people. म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. People had no say in this decision. जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में जनता की कोई भागीदारी नहीं है। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे, Chile was not elected by the people. पिनोशे, चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। This also applies to monarchies. The kings of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into a royal family. यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने जाते।
बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण ही उन्हें यह हक प्राप्त हो जाता है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं। फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। As we shall find out in chapter 3, every government in contemporary world wants to be called a democracy, even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one. इसीलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic governments. यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। Rebyank went back home and collected some more famous quotations on democracy. Rebyank स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को इकट्ठा किया। This time she didn't mention the names of the people who said or wrote these. She wants you to read these and comment on how good or useful these thoughts are. इस बार उसने इन उक्तियों या स्टेटमेंट्स को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियां कितनी अच्छी या उपयोगी हैं। Democracy gives every man the right to be his own oppressor. लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। Democracy consists of choosing your dictators after they have told you what you think it is you want to hear. लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। Man's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination to injustice makes democracy necessary. व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। Democracy is a device that ensures we shall be governed to better than we deserve. लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। All the ills of democracy can be cured by more democracy. लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है।
Now, read the cartoon Democracy. This cartoon was drawn when elections were held in Iraq with the presence of US and other foreign powers. What do you think this cartoon is saying? Why is democracy written the way it is? नाउ ये जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जो है इराक में इसमें जो है इराक में एक इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें अमेरिका और अन्य विदेश शक्तियां उपस्थित थीं। उस समय यह कार्टून बनाया गया था। यह कार्टून क्या कहता है? इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है? सोचिए और बताइए। नाउ आज के लिए बस इतना ही। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। स्टे